Okay. Last day we had discussed some questions on ratio, ages and partnership. Today we discuss some more questions on time and distance, profit and loss, percentage. Good afternoon. Good afternoon. Let's start the topic. This is the first question. First question, by how much percent a shopkeeper mark his goods above its cost price so as by giving 20% discount he may gain 10%. Topic is profit and loss. Shopkeeper gives 20% discount. Discount is always given on MRP. First is CP. CP means cost price. Purchase cost is called CP. MRP. MRP means maximum retail price. Printed price is called MRP. And next term is SP. SP means selling price. First, a shopkeeper purchase an article, suppose rupees 500. He leveled the price on the article for rupees 520. CP is 500, MRP is 520 and he sells the article for rupees 510. Here, difference between CP and MRP, cost price and printed price के difference को this is called markup price. Markup price is the difference between cost price and printed price. Here MRP is 520, shopkeeper sells it at rupees 510 means difference between MRP and SP, it is called discount. Discount is rupees 10 and shopkeeper gains rupees 10. CP is 500 and he sells it for rupees 510. Then rupees 10 is profit. Means profit is the difference between CP and SP. Discount is called difference between MRP and SP and markup is the difference between CP and MRP. Here discount is 20%. Discount is always given on printed price means MRP. Profit is always calculated on CP means cost price and MRP is also calculated on CP means cost price. Shopkeeper gives 20% discount. That means selling price is 80%. Shopkeeper gives 20% discount. That means selling price is 80% of what? So 80% of MRP because discount is calculated on MRP. Shopkeeper gains 10%. Gains means profit. Profit is always calculated on CP. Profit is 10%. That means selling price is 110%. Selling price is 110% of what? So profit is always calculated on cost price. That means SP is 110% of what? 110% of CP. Okay. एक बार रिपीट कर रहे, डिस्काउंट ऑलवेज प्रिंटेड प्राइस के ऊपर दिया जाता है, प्रॉफिट हमेशा सेलिंग कॉस्ट प्राइस के ऊपर रहता है. शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी सेलिंग प्राइस 80% होगा. शॉपकीपर 10% का प्रॉफिट कर रहा है यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 110% होगा. ये सेलिंग प्राइस एमआरपी का है और ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का है, बट ये दोनों ही एसपी है. तो आप यहां से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को भी इक्वेट कर सकते हो. बोल सकते हो 80% of MRP, 80% of MRP is equal to 110% of CP. We calculate ratio of MRP and CP. MRP by CP is equal to 110 is to 80. By how much percent a shopkeeper mark his goods? We have to calculate the markup percentage, which is this. Markup percentage, markup is the difference between CP and MRP. Let us suppose CP is 80 unit, MRP is 110 unit, then markup is 30 unit.
है ना। सीपी अगर 80 रुपीज है, एमआरपी 110 है, एमआरपी प्रिंटेड प्राइस है, सीपी और एमआरपी के डिफरेंस को मार्कअप बोला जाता है। मार्कअप कितना होगा? 30। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। मार्कअप इज 30 एंड सीपी इज 80। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? 300 by 8 means 37.5%। इस क्वेश्चन में मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करना था, दैट मीन्स 37.5। ये बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा था कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स रहते हैं। सीपी रहता है, एमआरपी रहता है, एसपी होता है। सीपी कॉस्ट प्राइस है, एमआरपी प्रिंटेड प्राइस है, एसपी सेलिंग प्राइस है। सीपी और एमआरपी के गैप को मार्कअप बोला जाता है, एमआरपी और एसपी के गैप को डिस्काउंट बोलते हैं और सीपीएसपी के गैप को प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर हुआ विपिन सर? हिंदी में भी बोल रहे हैं, बताइए क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है सभी को? मार्कअप परसेंटेज इज 37.5%। यस बिल्कुल खुशबू मैम, क्लियर टू ऑल? When you find your zone and you let things flow, you get it done. Show them how it's done. Show them how it's done. Show them how it's done. Such a price that after giving a discount of 12.5%, here discount percentage is 12.5% on mark price, he can earn a profit of 20%. Profit is 20%. If the article cost him 1400, cost price of the article is rupees 1400, then we have to find the mark price, that means MRP. CP is rupees 1400, then find MRP. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसे रिलेट कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर देखिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन का ही डेटा है, फिर से हम रिपीट कर देंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है शॉपकीपर 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी। डिस्काउंट इज 12.5%, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एसपी इज 87.5%। डिस्काउंट इज नेगेटिव वैल्यू। अगर डिस्काउंट 20% का है तो सेलिंग प्राइस 80 होगा। यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है 12.5%. If discount is 12.5%, then selling price is 87.5% of MRP. Discount is calculated on MRP. Next term is profit is 20%. Profit is always calculated on CP and profit is positive value. अगर profit 20% दे रहा है तो profit हमेशा CP पे calculate होता है। अगर profit 20% का है then selling price क्या हो जाएगा? 120%. Selling price is 120% of what? तो 120% of CP. Clear? Yes. Very good. Answer is 1920. Okay. Then equate 87.5% of MRP is equal to 120% of CP. Then MRP is to CP is equal to 120% divided by 87.5%. आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, परसेंटेज कैंसिल कर लोगे। यहाँ पर आप कर सकते हो 5 से 1200 पॉइंट को कैंसिल करके 1200 डिवाइडेड बाय 875। अब 25 से इसे डिवाइड कर सकते हो। 25 से डिवाइड करोगे 48, 25 से डिवाइड करोगे 35। मीन्स रेशियो ऑफ एमआरपी एंड सीपी इज 48:35। सीपी क्वेश्चन में गिवन है, सीपी इज 1400, फाइंड एमआरपी, दैट मीन्स 35 यूनिट इज इक्वल टू 1400। इफ 35 यूनिट इज इक्वल टू 1400, देन फाइंड 48 यूनिट। 35 यूनिट इज इक्वल टू 1400, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 40, and 48 unit is equal to 48 into 40, that is 1920. Clear? Clear? क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है?
Yes, 1920. Answer is 1920. Correct. Okay. Next question. A shopkeeper gives. Repeat once again. Okay. इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखिए कि डिस्काउंट गिवन है 12.5%. डिस्काउंट इज नेगेटिव वैल्यू. इफ डिस्काउंट इज 12.5%, then selling price is 87.5%. Okay, discount is always given on MRP. Printed price पे always discount दिया जाता है. अगर 12.5% का डिस्काउंट है तो MRP कितना हो जाएगा? 87.5. सेलिंग प्राइस इज 87.5% ऑफ MRP. नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट. प्रॉफिट इज पॉजिटिव वैल्यू. प्रॉफिट इज 20%. प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन ऑन कॉस्ट प्राइस. Then if profit is 20%, then selling price is 120%. 120% of what? तो 120% of CP. डिस्काउंट MRP पे कैलकुलेट होता है, इसलिए सेलिंग प्राइस MRP का 87.5% होगा. देखो यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आप सेलिंग प्राइस पे MRP के थ्रू भी जा सकते हो. MRP के थ्रू अगर सेलिंग प्राइस पे जाते हो तो डिस्काउंट के थ्रू जाओगे. अगर आपको CP से प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे जाना है तो प्रॉफिट. दोनों ही सेलिंग प्राइस सेम होता है, तो यहाँ पर सेम कैलकुलेशन किया जा रहा है. आप डिस्काउंट से भी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो और प्रॉफिट से भी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो. ये दोनों ही सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो यहाँ से आपको MRP और CP का रेशियो मिल जाएगा. MRP is 35 यूनिट एंड प्रॉफिट इज 48 यूनिट. क्वेश्चन में आपको CP दिया हुआ है ना. CP मीन्स इस 35 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 35 यूनिट इज इक्वल टू 1400. देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 35 is equal to 40. 1 unit is 40. Then find the MRP. MRP means maximum retail price, means printed price, which is 48 unit. 1 unit is equal to 40. Then 48 unit equal to 48 into 40, that is 1920. Yes, 12.5 को आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, मालूम है ना. बिल्कुल 12.5 को 1/8 से भी रिलेट कर सकते हो. 87.5. 100 minus 12.5. 100 minus 12.5 is 87.5%. Clear? Okay. Next question. A shopkeeper gives 3 articles free on purchase of 5 articles. On purchase of every 5 article, you get 3 articles free. मीन्स विच इज डिस्काउंट. अगर आप 5 आर्टिकल खरीदते हो तो 3 आर्टिकल आपको फ्री में मिल रहा है, मतलब क्या आपको डिस्काउंट मिला. बाई 5 गेट 3. व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट. अगर 5 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री मिल रहा है तो कितने का डिस्काउंट हुआ. तो 5 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल मिल रहा है, मीन्स टोटल आर्टिकल इज 8. Let us suppose MRP of one article. Suppose MRP of one article is rupees 100, then MRP of 8 article is rupees 800. We have to pay only the price of 5 article. हमें सिर्फ 5 आर्टिकल का प्राइस पे करना है क्योंकि 3 आर्टिकल फ्री में दे रहा है. तो MRP of 8 आर्टिकल इज 800. देन SP of 5 आर्टिकल, आपको सिर्फ यहाँ 5 आर्टिकल का पेमेंट करना है, दैट इज रुपीज 500. 800 का आर्टिकल आप 500 में परचेज करते हो. ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%. सेम आर्टिकल पे अगर आपको ज्यादा बार डिस्काउंट मिलता है, विच इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट. अगर एक ही सामान पे आपको एक से ज्यादा बार डिस्काउंट मिलता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट. बाई 5 गेट 3 फ्री. ये तो डिस्काउंट था ही, 5 खरीदने से 3 फ्री मिल रहा है. ही गिव्स ऑल्सो 20% मोर डिस्काउंट. नाउ 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन 500 और 800. जो 20% का डिस्काउंट देगा वो 500 पे देगा शॉपकीपर या 800 पे. 20% मोर डिस्काउंट मिलेगा विच इज कैलकुलेटेड ऑन 500 और 800.
तो डिस्काउंट ऑलवेज डिस्काउंटेड प्राइस पे देगा. 20% मोर डिस्काउंट मीन्स 20% ऑफ 500 मीन्स 100 रुपीज और डिस्काउंट हो गया. देन फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? 500 का आर्टिकल में 100 रुपीज मोर डिस्काउंट होगा. 800 पे नहीं, 500 पे डिस्काउंटेड प्राइस. 800 एमआरपी था, डिस्काउंट होने से 500 है. अब आप ये पेमेंट करोगे, वो आपको 20% मोर डिस्काउंट देगा. यस, 500 पे 500 का 20% 100 रुपीज और डिस्काउंट हो गया. फाइनल सेलिंग प्राइस इज रुपीज 400. फाइंड द टोटल डिस्काउंट. MRP is 800 and final selling price is 400. What is the total discount? 800 का को 400 में मिल गया, मीन्स हाफ प्राइस में मिल गया. तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? रिप्लाई करिए आप लोग. अगर एमआरपी 800 है और सेलिंग प्राइस 400 है, 800 का आर्टिकल 400 में सेल किया, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट परसेंट? 800 का आर्टिकल 400 में मिल रहा है, हाफ प्राइस में मिल रहा है. यस, टोटल डिस्काउंट इज 50%. Total discount is 50% and still earn 25%. 50% discount के बाद भी shopkeeper earns 25% profit. Find the ratio of CP and MRP. Similarly, if discount is 50%, then selling price is also 50% of MRP. Discount is 50%, then selling price is 50% of MRP. If profit is 25%, then selling price is 125%. Profit is 25%, then selling price is 125% of CP. We have to find the ratio of CP and MRP. That is 50% of MRP is equal to 125% of CP. Ratio of MRP and CP is MRP by CP is equal to 125 divided by 50, which is 5:2. एमआरपी और सीपी का रेशियो फाइंड करना था, तो 5:2. बट क्वेश्चन में पूछ रहा है सीपी इज टू एमआरपी. एमआरपी इज टू सीपी इज 5:2. देन सीपी इज टू एमआरपी इक्वल टू क्या होगा? सीपी, एमआरपी और सीपी का रेशियो 5:2 है. तो फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है? सीपी इज टू एमआरपी. रेशियो क्या बताएंगे? यस, प्रॉफिट डिस्काउंट 50% होगा. वेरी गुड. सीपी इज टू एमआरपी इज 5:2 और 2:5. सीपी इज टू एमआरपी इज 2:5 ना. सीपी इज टू एमआरपी इज 2:5. क्लियर? 2:5. यस, क्लियर? किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन पे? 2:5, बिल्कुल बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. A man sells 2 articles for 20% first on 20% loss and second on 60% profit. Person sells total 2 articles. On first article he loses 20% and second article he gains 60%. Find their selling price. Find their selling price. There means both articles. Find their selling price if difference between their CP is rupees 3200. 3200 is the difference between cost price of both article. If selling price of both article is same, SP of both article is same. अब आप रेशियो से कर सकते हो. लॉस इज 20%. लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP. If loss is 20%, then if CP equal to 100%, loss is 20%, then selling price is equal to 80%. Clear? On second article, profit is 60%. On second article, profit is 60%. Profit is also calculated on cost price. If CP is 100%, then selling price is 160%.
अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। लॉस भी सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट भी सीपी पे कैलकुलेट होता है। इफ सीपी 100% है तो 20% का लॉस होगा, तो एसपी 80% होगा। ये फॉर फर्स्ट आर्टिकल है। सेकेंड आर्टिकल पे देखिए 60% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी ऑलवेज सीपी पे कैलकुलेट होगा। सीपी 100 है तो प्रॉफिट 160। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 100:80 को क्या लिख सकते हो, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। सेकेंड आर्टिकल का रेशियो सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे, ये क्या होगा, 5:8। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको रेशियो में भी दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वल रखना होगा। देखिए सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का रेशियो 8 है और फर्स्ट का सेलिंग प्राइस 4 है, तो आपको इसे इक्वल करना होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। नाउ रेशियो बिकम्स 10:8 एंड 5:8। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, दैट इज फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एसपी इज 125% ऑफ सीपी, बिल्कुल। एसपी ऑलवेज सीपी ऑलवेज प्रॉफिट ऑलवेज सीपी पे कैलकुलेट होता है, लॉस भी सीपी पे कैलकुलेट होता है। ये 20% लॉस है, किस चीज का, तो सीपी का। आप सीपी को कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। इफ सीपी इज 100%, लॉस इज 20%, लॉस इज नेगेटिव वैल्यू। तो जब लॉस होता है तो सीपी से लॉस को माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रॉफिट इज 60%, तो प्रॉफिट भी सीपी पे कैलकुलेट होता है। अगर आप सीपी को 100% एज्यूम करते हो तो 60% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पॉजिटिव वैल्यू है तो सेलिंग प्राइस 160 होगा। इस रेशियो को बस सिंप्लीफाई किया गया, रेशियो 5:4 एंड 5:8 आया। दोनों रेशियो में क्या कॉमन है, सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो हमें इसे कॉमन करना पड़ा। अब देखिए फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट, सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट। डिफरेंस क्या होगा दोनों के कॉस्ट प्राइस का, 5 यूनिट। 5 यूनिट इज इक्वल टू 3200, then 1 unit is equal to 640. We have to find the selling price of the article. Selling price means 8 unit. 1 unit is equal to 640, then find 8 unit is equal to 5120, 5120। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया, देखिए क्वेश्चन में सीपी और एसपी का रेशियो देखिए। फर्स्ट में सीपी एसपी का रेशियो क्या है, 5:4 है, और सेकेंड में रेशियो 5:8 है। क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है, जो कि रेशियो में इक्वल नहीं था। तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इक्वल था तो हमें रेशियो को इक्वल करना था। यहाँ पर एसपी का रेशियो 8 है, यहाँ 4 है, तो आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी सेलिंग प्राइस का रेशियो इक्वल हो पाएगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, क्लियर। 2560 नहीं, 5120 ना। शोएब सर क्लियर, बाकी सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sells his goods at 20% profit. Here profit is 20%. Profit is calculated on cost price. If CP is 100%, profit is 20%, then selling price क्या होगा? अगर CP 100% है, प्रॉफिट 20% है, तो सेलिंग प्राइस को कितना परसेंट लिखेंगे बताइए? CP 100% है ना, प्रॉफिट 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? Next question, yeah, next question. If CP equal to 100%, profit is 20%, then selling price is equal to 120%. Had he purchased it for rupees 600 less, if CP is rupees 600 less and sold it for rupees 400 less,
है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सीपी को 600 लेस किया जाए एंड एसपी को 400 लेस किया जाए, देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट। अगर सीपी, इफ सीपी इज 100%, प्रॉफिट इज 30%, देन सेलिंग प्राइस इज 130। इसे रेशियो में कैलकुलेट करिए, सीपी एसपी का क्या रेशियो होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसे रेशियो में आप कैलकुलेट करोगे तो सीपी एसपी का रेशियो आप इसे क्या लिख सकते हो, 5:6। नेक्स्ट रेशियो को क्या लिखोगे, 10:3, 30। लास्ट क्लास हम क्रॉस मेथड पढ़े थे, याद है, लास्ट क्लास हम लोग क्रॉस मेथड पढ़े थे। ये दो रेशियो है, अगर हमें रेशियो के बीच का डिफरेंस पता है तो हम क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं ना। देखिए सीपी 5 यूनिट से 10 यूनिट हो गया, सीपी में कितने का चेंज आया, क्वेश्चन में लिखा है कि इफ ही परचेज इट फॉर ₹600 लेस, सीपी का चेंज आपको पता है ना 600। अब देखिए एसपी में भी चेंज आया, 6 से 13 हो गया, कितने का चेंज है, तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस में 400 का चेंज है। याद है लास्ट डे क्रॉस मेथड यूज किए थे, आप यहाँ भी क्रॉस मेथड यूज कर सकते हो। कैलकुलेट करिए, क्रॉस मेथड क्या था, 13 इंटू 5 इज 65 यूनिट, 10 इंटू 6 60 यूनिट, 65 यूनिट से 60 यूनिट का डिफरेंस करना है, ये हो जाएगा 5 यूनिट। 5 unit is equal to 10 into 400 is 4000, 13 into 600 7800, 7800 से 4000 को माइनस करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा 3800। 5 unit is equal to 3800, find initial CP, initial CP means we have to find 5 unit। आप ऑलरेडी 5 यूनिट ही फाइंड कर लियो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3800। सिमिलर क्वेश्चन था, प्रॉफिट गिवन था, आप सीपीएसपी का रेशियो बनाओगे, सीपीएसपी का रेशियो बना, दो सीपी और दो एसपी का रेशियो क्यों बना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में 600 का चेंज किया गया और सेलिंग प्राइस में 400 का। दो रेशियो का अगर डिफरेंस पता है तो यहाँ पे हम क्रॉस मेथड यूज किए, बिल्कुल आंसर इज 3800। क्लियर। यूनिट पार्ट, ओके। यूनिट पार्ट 5 into 13, यहाँ पर यूनिट पार्ट क्या है, यूनिट ये है, 5 और 6 को बोलते हैं, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, 5 यूनिट इंटू 13, 5 इंटू 13 इज 65 यूनिट, 13 5 जा 65 यूनिट। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन इज 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 इज 60 यूनिट, डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 60 यूनिट। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के बाद आप डिफरेंस लेते हो, 65 माइनस 60 विच इज 5 यूनिट। 5 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 5 यूनिट का कैलकुलेशन यहां से होगा, 10 इंटू 400 इज 4000, 13 इंटू 600 इज 7800, 13 इंटू 600 7800 माइनस 10 इंटू 400 इज 4000, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 3800, विच इज द वैल्यू ऑफ 5 यूनिट। 5 यूनिट इज इक्वल टू 3800। 1 यूनिट फाइंड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाई चांस आपको सीपी को फाइंड करना था और सीपी ऑलरेडी 5 यूनिट दिया हुआ था, तो 5 यूनिट इज 3800। क्लियर। क्रॉस मेथड यूज करना है कि अगर आपके पास दो रेशियो गिवन है, टू रेशियो होना चाहिए, है ना, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, दो रेशियो होना चाहिए और डिफरेंस बिटवीन रेशियो पता होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ रेशियो गिवन होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ रेशियो, डिफरेंस ऑफ रेशियो वैल्यू के फॉर्म में गिवन होना चाहिए। तो सीपी का डिफरेंस दिया है ना 600 एंड डिफरेंस ऑफ एसपी दिया है 400, तो रेशियो सीपीएसपी का है और डिफरेंस भी सीपीएसपी का है, तो आप यहाँ पे क्रॉस मेथड यूज कर सकते हो। 5:6, 100:125, सिंप्लीफाई करो, करिएगा, रेशियो है ना, 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question. The sale of cinema ticket is increased by 57 whole 1 by 7%. Sale of cinema ticket. Sale of ticket means consumption part. Consumption. If consumption is increased by 57 whole 1 by 7% and the price of ticket is increased by 16 whole 2 by 3%. 57 whole 1 by 7% is the increment of sale of ticket. Sale of ticket is called consumption. Consumption is increased by 57 whole 1 by 7%. And price is also increased by 16 whole 2 by 3%. Find the percentage change in his revenue. Revenue means expenditure. Expenditure को revenue बोला जाता है. थोड़ा terms को explain करते. Revenue means expenditure. Revenue means expenditure. Price means price. Rate है, पता ही होगा. Price का मतलब rate. And consumption. Consumption means quantity. Show them how it's done. Show them how it's done. Show them how it's done. होटल्स का इतना लो रेट Only on Agoda. Might. अगोडा का बजट है. Expenditure is equal to price into consumption. Expenditure is equal to price into consumption. Here price, consumption is increased by 57 whole 1 by 7%. 57 whole 1 by 7% means 57 whole 1 by 7 को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, कौन बताएंगे? 57 whole 1 by 7% is equal to what? $57 whole 1 by 7%. Four by 7. 57 whole 1 by 7% means 4 by 7. Clear or not? 57 into 7. 7 7 ja 49 plus 150. 7 into 5 35 plus 5 400 divided by 7. Percentage मतलब denominator is 100 which is equal to 4 by 7. Yes, 400 by 7 means 4 by 7. प्राइस रेवेन्यू में चेंज, कंजम्पशन में चेंज दे रहा है, कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हो रहा है 4 by 7. 399 by 7, 399 plus 1 बिल्कुल 400 by 7 means 4 by 7. Next 16 whole 2 by 3% is equal to 16 whole 2 by 3% means 1 by 6. 16 whole 1 by 2 by 3 means 1 by 6. ये प्राइस का चेंज दिया हुआ है और ये कंजम्पशन का चेंज दिया है. डिनोमिनेटर बता रहा है इनिशियल कंजम्पशन. इनिशियली सेल ऑफ टिकट, इनिशियली सेल ऑफ टिकट 7 यूनिट था. इट इज इंक्रीज्ड बाय 4 यूनिट. सेल टिकट का सेल 7 यूनिट था, 4 यूनिट इंक्रीज हो गया. तो अब न्यू सेल कितना यूनिट होगा? 7 यूनिट में 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया तो न्यू सेल हो जाएगा 11 यूनिट. प्राइस, initial price is 6 unit. Initial price of the ticket is 6 unit. 1 unit increase. Increased price is 1 unit. New price is equal to 7 unit. 57.14 yes. 16.66 ये दोनों ही परसेंटेज है, फ्रैक्शन में लिखना है. अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कंजम्पशन में क्या चेंज आया. Initial consumption is 7 unit. After increase, it becomes 11 unit. Price. Initial price is 6 unit. After increment, it becomes 7 unit. We have to calculate expenditure. Expenditure means price into consumption. Initial expenditure is equal to price into consumption means 7 into 6 42. Initial revenue is 42 unit. After increment price into consumption 11 into 7 77. Initially budget 42 था, increase होके 77 हो गया. कितने का increment आया? Increment is 35 unit. Find the percentage change in his revenue. We have to find the percentage change in expenditure. Change in expenditure
एक्सपेंडिचर इज 35 यूनिट, आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इनिशियल से कंपेयर करेंगे 35 by 42 into 100 which means 7 5 जा 7 6 जा 5 by 6 means 83.33%. Percentage find the percentage changes in his revenue. The change in revenue is 83.33%. Clear? क्लियर है सभी को? थर्टी फाइव बाई 42 देखिए, एक्सपेंडिचर इनिशियल एक्सपेंडिचर 42 यूनिट था, इंक्रीमेंट के बाद एक्सपेंडिचर 77 यूनिट हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट आया? तो 77 माइनस 42 इंक्रीमेंट इज 35 यूनिट. वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट. परसेंटेज चेंज के लिए आपको कंपेयर करना होगा. 35 का इंक्रीमेंट आया किसके ऊपर? 42 के ऊपर. 42 से 35 इंक्रीज हुआ है तो इसे परसेंटेज में बताना था. तो 35 चेंज इन एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल एक्सपेंडिचर इज 42. परसेंटेज चेंज करना है इसलिए इंटू 100 करेंगे. लास्ट पार्ट. ओके, फिर इसे एक बार इरेज कर देते हैं. ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं. पहले आप यहां पर लिख सकते हो चेंज इन कंजम्पशन. कंजम्पशन में क्या चेंज आया? तो कंजम्पशन का इंक्रीमेंट दिया हुआ है कि कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 57 होल 1/7% विच मीन्स 4/7. एंड चेंज इन प्राइस. Price of ticket is also increased by 16 whole 2/3%. 16 whole 2/3% means 1/6. अब इसे रेशियो में लिखना है कि इनिशियल कंजम्पशन का चेंज. डिनोमिनेटर इज इनिशियल कंजम्पशन. इनिशियल कंजम्पशन इज 7 यूनिट. 4 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा तो न्यू कंजम्पशन इज 11 यूनिट. चेंज इन प्राइस. Denominator is initial price. Initial price is 6 unit. Increased by 1 unit, it becomes 7 unit. Find the change in his expenditure. Expenditure means price into consumption. Price into consumption means 7 into 6. Initial expenditure is 42 unit. After change, price is 7 unit and consumption is 11 unit. Then in final expenditure is 77 unit. We have to find the change in his expenditure. Change in expenditure is 42 से 77 हो गया. Change in expenditure is 35 unit. We have to find percentage change in his expenditure. तो 35 unit is change. This change, ये जो चेंज आया है ये किसके ऊपर आया है? 42 इनिशियल कंजम्पशन पे इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर इज 5/6. 500/6 मीन्स 83.33%. क्लियर? 35 चेंज है. 42 पहले एक्सपेंडिचर होता था, पहले आप 42 रुपीज खर्च करते थे, अब आप 77 रुपीज खर्च कर रहे हो तो कितने का चेंज आया? तो 77 से 42 को माइनस करिएगा तो 35 आएगा ना. क्लियर? क्लियर ना? ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इलेक्शन, two candidates participated. 20% voters didn't vote. 20% voters didn't vote. And 12 whole 1/2% votes declared invalid. Invalid vote is 12.5% and winner gets 60% of the valid vote. Winner gets 60% vote. 60% of what? 60% of the valid vote. And won by 5,600 vote. Find the number of voters in voter list. We have to find the total voters in voter list. Suppose total voters in voter list is total voters.
We have to find total voters. Let us suppose total voters is 100. If total voters is 100%, total voters is equal to 100%. 20% voters didn't vote. 100% से 20% voters didn't vote. How many 20% means 20 voters, 20x voters didn't vote. Then how many voters voted? तो 80x voters voted. 80x लोगों ने वोट किया. 12 whole 1/2% votes declared invalid. Invalid vote कहां से होगा? तो जिन्होंने वोट दिया है उसका 12 whole 1/2%. 12 whole 1/2% means 1/8 votes becomes declared invalid. 80x का 1/8 यानी 10x votes declared invalid. Then how many votes are valid? Number of valid vote क्या हो जाएगा? 100x थे, 20x तो वोट ही नहीं दिया, 80x लोगों ने वोट दिया बट 1/8 वोट्स इनवैलिड हो गया. यानी 10x अगर इनवैलिड वोट हो जाएंगे तो वैलिड वोट कितना होगा? हाँ, सक्सेसिव मेथड यूज कर सकते हो, बिल्कुल. यस, सक्सेसिव मेथड से आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सक्सेसिव मेथड x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 है ना. सक्सेसिव यहां पर जो चेंज आएगा ये एक्सपेंडिचर, चेंज इन एक्सपेंडिचर. x मीन्स चेंज इन प्राइस एंड y मीन्स चेंज इन कंजम्पशन. आप इससे भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल. 70x valid vote is 70x. Now winner gets 60% vote. 60% of what? Total votes or valid vote? तो clearly लिखा है winner got 60% of valid vote means 60% of 70. बताएं विनर का वोट कितना होगा? 70 वैलिड वोट है जिसमें से विनर को 60% मिला. 60% ऑफ 70, टोटल वोटर्स इज 40,000. वेरी गुड. 60% of 70 is 42x. वैलिड वोट 70x है, विनर को 42 मिला तो रिमेनिंग वोट किसका होगा? लूजर का. लूजर को कितने वोट्स मिलेंगे? तो 70 से 42 को माइनस करेंगे. लूजर गॉट 28x वोट. विनर एंड वन बाई 5600 वोट. जो विनर है वो 5600 वोट से जीत रहा है. विनर मीन्स डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर वोट. यहां देखिए विनर का 42x वोट है, लूजर का 28 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 14x. करेक्ट. यहां पर आपको विनर का डिफरेंस दिया है कि विनर वॉन by 5600 vote means 14x is equal to 5600 means x is equal to 400. We have to find the total number of voters in the voter list means what is the value of 100x. If x equal to 400 then 100x is equal to 40,000 means total voters is 40,000. Clear? क्लियर है सभी को? ओके. एक बार और रिपीट करना. ओके. क्वेश्चन में दिया है कि 20% वोटर्स डिडंट वोट. 20% ऑफ व्हाट? तो 20% ऑफ टोटल वोटर्स. टोटल वोटर्स का 20% लोगों ने वोट नहीं किया. तो आपको टोटल वोटर्स नहीं पता है. अगर आप टोटल वोटर्स को 100x लेते हो तो 20% वोटर्स डिडंट वोट. तो 100x का 20%, 100x का 20% मीन्स 20x वोटर्स डिडंट वोट. 100 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था बट 20x लोगों ने वोट नहीं किया. तो कितने लोगों ने वोट किया? तो नंबर ऑफ वोटेड पर्सन क्या होगा? टोटल 100x है, 20% मीन्स 20x लोगों ने वोट नहीं किया. तो कितने लोगों ने वोट किया? 80x.
12 होल 1/2% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। वोट इनवैलिड कब होगा? देने के बाद होगा। और वोट दिया है कितने लोगों ने? 80x लोगों ने वोट दिया है। तो जिसने वोट दिया है उसका 12 होल 1/2% वोट इनवैलिड होगा। 12 होल 1/2% ऑफ 80x, 80x का 12 होल 1/2 करेंगे तो 10x वोटर्स, 10x वोट इनवैलिड हो गया। अब 80 लोगों ने वोट दिया बट 10 वोट्स इनवैलिड चले गए, किसी को वोट नहीं मिलेगा वो 10 वोट, तो फिर वैलिड वोट कितने रहेंगे? टोटल वोटेड से 10x इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट हो गया 70x। विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट मीन्स 70x, विनर गेट 60% ऑफ 70x, 60% of 70x means 70x into 60% means 60/100 which comes 42x, means winner get total 42x वोट। अब टोटल वैलिड वोट 70x है, विनर को 42 मिलेगा तो रिमेनिंग वोट लूजर को मिलेगा। 70 से 42 को माइनस करेंगे तो लूजर गॉट 28x वोट। अब विनर कितने वोट से आगे है? तो विनर और लूजर के वोट का डिफरेंस, विनर 14x वोट से जीत रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि विनर कितने वोट से जीत रहा है? 5600 मीन्स 14x is equal to 5600 which means x is equal to 400. We have to find the total number of voters in voter list means total voters. 100x is equal to 100 into 400 which comes 40,000. Clear? यस, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, एक लाइन में भी आप इसका आंसर कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे सक्सेसिव नहीं कर सकते हो, ज्यादा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन पे सक्सेसिव नहीं होगा। आप एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हो। टोटल वोटर्स को देखो, वन लाइन में आंसर कैसे करोगे? टोटल वोटर्स एक्स है, 20% लोगों ने वोट नहीं किया मीन्स 1/5 लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया? तो 4/5 लोगों ने वोट किया। 12 होल 1/2 मीन्स 1/8 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने होंगे? 7/8। Winner get 60%, winner got 60%, then loser got 40%. Difference between winner and loser vote is 20%. 20% means 1/5 which is equal to 5600. आप यहाँ से डायरेक्टली x को फाइंड कर सकते हो, वन लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 12 and 1/5, okay. 12%, percentage value of 12.5 is 1/8, है ना? आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 12.5 परसेंटेज मीन्स डिनोमिनेटर इज 100, पॉइंट को हटाओगे 0 आएगा। 25 से इसे सिंप्लीफाई करोगे या 125 से ये सिंप्लीफाई होके 1/8 होता है। और 1/5 मीन्स 20%, 20% मीन्स 20/100, इसे आप सिंप्लीफाई करके 1/5 लिखते हो। क्लियर? 1/8 और 1/5 कहां से आया? आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर शॉर्टकट करना है तो आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर कर सकते हो। निखिल सर, क्लियर हुआ? अच्छा, ये यहाँ पर 12 होल 1/2 को 1/8 बोलते हैं ना, तो आप 80x का 1/8 करोगे तो ये 10x आएगा। ठीक है, 12.5 को 1/8 बोलते, 80x का 1/8 करोगे तो 10x आएगा ना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% water. Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How many kg of dry fruit can be made from 75 kg of fresh fruit? फ्रूट किस चीज से बना होता है? फ्रूट में दो चीजें होती है, फ्रूट में वाटर होता है और पल्प होता है ना? किसी भी फ्रूट, कोई भी फ्रूट वाटर और पल्प से बना होता है। अगर फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है तो रिमेनिंग पल्प होगा। आप बता सकते हो कि फ्रेश फ्रूट में अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना परसेंट होगा?
शॉर्टकट मेथड को रिपीट कर दे, ठीक है कर देते, इसको अब कर लेते हैं फिर रिपीट करते हैं। अगर फ्रेश फ्रूट में वाटर 68% है तो पल्प कितना होगा? फ्रूट में दो ही पार्ट होता है, पल्प और वाटर, तो वाटर 68 पता है तो पल्प कितना हो जाएगा? 32%। एंड ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट ही ड्राई हो जाता है, ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, अगर ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है तो रिमेनिंग क्या होगा? पल्प, तो ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है तो पल्प कितना होगा? 80%। यस बिल्कुल। अब फ्रेश फ्रूट ड्राई क्यों होता है? ये सभी को पता होगा कि फ्रूट ड्राई क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्रूट से वाटर इवेपोरेट होता है, ये पता है ना सभी को। फ्रेश फ्रूट ही ड्राई बन जाता है, क्यों बन जाता है? क्योंकि उसमें से वाटर इवेपोरेट होता है। अगर फ्रूट से वाटर इवेपोरेट होगा तो वाटर के क्वांटिटी में चेंज आएगा या पल्प में चेंज आएगा? एक बार रिप्लाई करिए, अगर वाटर इवेपोरेट होगा तो वाटर के वेट में चेंज आएगा या पल्प में चेंज आएगा? बताइए, वाटर इवेपोरेट होने से वाटर में चेंज आएगा या पल्प में? बिल्कुल वाटर में चेंज आएगा, यानी पल्प पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेश फ्रूट के अंदर जितना पल्प होगा ड्राई फ्रूट के अंदर भी उतना ही पल्प होगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रेश फ्रूट का वेट 75 केजी है, तो फ्रेश फ्रूट 75 केजी है और फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है? 32%, तो पल्प का क्वांटिटी कितना होगा? तो 75 केजी का 32% है ना। यहाँ पर आप क्या फाइंड कर रहे हो? पल्प का वेट, पल्प का वेट कितना होगा? फ्रूट के वेट का 32%। अब ड्राई फ्रूट का वेट हमें नहीं पता है, लेट अस सपोज ड्राई फ्रूट का वेट x है, तो ड्राई फ्रूट का वेट जो भी होगा इसमें पल्प का वेट कितना होगा? तो फ्रूट के वेट का 80%, तो ड्राई फ्रूट का वेट अगर x है तो पल्प का वेट 80% होगा। और अभी अभी आप लोग क्या बताएं कि फ्रूट ड्राई होगा तो वाटर में चेंज होगा, पल्प के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी फ्रेश फ्रूट में जितना पल्प है ड्राई फ्रूट में भी उतना ही पल्प होगा। आपसे ड्राई फ्रूट का वेट पूछ रहा है यानी एक्स पूछ रहा है, एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो। वाटर ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, सूखता क्यों है? क्योंकि उसमें से वाटर इवेपोरेट होता है। हमेशा कोई भी चीज फ्रूट हो या पल्प हो वो ड्राई क्यों होता है? क्योंकि उसमें से वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो पल्प में कोई फर्क नहीं आएगा। आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको फ्रूट का वेट मिल जाएगा। सॉल्व करिए, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज को आप कैंसिल कर सकते हो। 5 से 80 को डिवाइड करिएगा 16, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 15, 16 से 32 को डिवाइड करेंगे 2, यानी x इज इक्वल टू 30। फ्रेश फ्रूट का वेट कितना केजी था? फ्रेश फ्रूट 75 केजी था, बट जब फ्रूट ड्राई हो जाएगा तो ड्राई फ्रूट का वेट कितना हो जाएगा? 30 केजी। हाँ, परसेंटेज राउंड होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पल्प का परसेंटेज, हाँ परसेंटेज कम होगा क्योंकि ड्राई हो रहा है, बिल्कुल 30 केजी। क्लियर? क्लियर है सभी को? एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, ये एक जन का डाउट था। देखिए इसे हम शॉर्टकट से करेंगे, मतलब वन लाइन में अगर आपको इसका आंसर करना है तो टोटल वोटर्स को एक्स लेंगे। 20% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, 20% को आप फ्रैक्शन में 1/5 बोलते हैं। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोट कितने लोगों ने किया? 80%, 80% मीन्स 4/5। Now 12 whole 1/2% votes invalid है ना। 12 whole 1/2 का परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/8। अगर 1/8 वोट इनवैलिड होगा तो वैलिड वोट कितना होगा? तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? 1 से 1/5 को माइनस किए तो 4/5। अगर 1 वोट इनवैलिड होगा तो वैलिड वोट कितना होगा? 7/8। Now winner got 60% vote. If winner got 60% vote, then remaining vote लूजर को मिलेगा। लूजर को कितने वोट मिलेंगे? टोटल से 40%। तो विनर लूजर से कितने डिफरेंस से जीत रहा है? 20%, यानी कि डिफरेंस ऑफ
वोट्स, दोनों विनर और लूजर के वोट का डिफरेंस क्या है 20%, जिसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/5, और ये डिफरेंस आपको एक्चुअल में गिवन है 5600। आप यहां से अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 7 इंटू 4 28, 28 से 5600 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 200। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 5 200, 200 इंटू 200। क्लियर आंसर? Show them how it's done. Show them how it's done. Show them how it's done. चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर है 30 kg वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. Income is increased by 1.12 lakh, but rate of tax is reduced, means decreased. Rate of tax is reduced. पहले टैक्स 12% देता था, अब वो टैक्स दे रहा है 10%, तो बिल्कुल रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस। He now pay the same amount of tax as before, but amount of tax is both same in both cases. पहले जितना अमाउंट देता था टैक्स पे, अभी भी टैक्स में उतना ही अमाउंट दे रहा है। What is his increased income? Find his increased income. Let us suppose his initial income is X rupees. After increment of 1.2 lakh, his income becomes X plus 1.2 lakh. Rate of tax is 12%. जब सैलरी X था तो रेट ऑफ टैक्स इज 12%. नाउ रेट ऑफ टैक्स इज 10%, बट एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल। X का 12% टैक्स देता था, अब वो X प्लस 1.2 का 10% देता है, बट he now pay the same amount of tax, means जितना वो पहले टैक्स देता था अभी भी उतना दे रहा है, यानी x का 12% और x प्लस 1.2 का 10% इक्वल है। आप इसे इजिली एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। 12% ऑफ x और 10% ऑफ x, डिफरेंस इज 2% ऑफ x इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10%। परसेंटेज से आप परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। 2x इज इक्वल टू 2x is equal to 1.2 into 10 is 10. Then x is equal to 5. Initial income is 5 lakh. After increment of 1.2 lakh, new income. What is his increased income? Increment के बाद पूछ रहा है, तो increment के बाद उसका income कितना हो जाएगा 6.2 lakh. Clear? 7.2 हो रहा है। अच्छा, कहां पे गलती हो गया? 12% ऑफ x एंड 10% ऑफ x, 2% ऑफ x, ये मीन्स 2x। परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 12x और 10x, 2x, 1.2। अच्छा, ये 1.2 इंटू 10 इज 12 ना? यस, यहाँ पे गलती होगा। 1.2 इंटू 10 इज 12. 2x is equal to 12, then x equal to 6 lakh. Initial income is 6 lakh. After increment, it is 7.2 lakh. Yes, answer is 7.2 lakh. हाँ 6 होगा, yes 6 होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है? क्लियर है तो? क्लियर, ओके ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास के बाद आपके ग्रुप में पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए सेशन को एंड करते हैं।